do you all know what the cardinality of a set is? Yes, sir. So what is it? Cardinality means the number of elements in it. Okay. Elements. It is cardinal. So when we say two sets have same cardinality, this means two sets. Sets are equal. Two sets have the same number of elements. No, see, किसी ने बोला टू सेट्स आर इक्वल, ये गलत है. मैंने बोला टू सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी और टू सेट्स आर सेम, दोनों अलग अलग चीजें. टू सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी. Okay, if there exists a bijective map between them. Okay, for example, take a set A, B, C, take set B, 1, 2, 3. These two sets are not equal. They are not equal. Their elements are different, but their cardinality is same. Okay, you can map F. You can define a map F which sends A to 1, B to 2, and C to 3. This is 1, 1, and 2 onto map. Okay. Okay. Good. So next thing. So if you have a set is countable, if say a set X is countable, if X has if okay, how can I say so? If X is of same cardinality, same cardinality as a say set X is countable if X is of same cardinality okay, let me say like this. As n. No, not as a if X and if there exists a subset of positive integers, yeah, of positive integers, there exists a subset, call this subset say can call this subset B of positive integers such that B and C have same kind. Okay, is this correct? So I think Arpit gave one answer. Arpit, did you give a definition of countable set, or who was that guy? Yes, sir. Was that Arpit? Arpit gave a definition of countably infinite set. Okay, you gave definition of countably infinite. You said that from A to Z plus there exists a 1 1 onto map. Did you say this? Hello, अर्पित. Yes, sir. यही आपने बोला था. What do you? आपने यही बोला था ना.
जी सर. So this is the definition for countably infinite set. Okay, not the countable set. So for countable set, it would be either empty set or it could be finite or this thing. Okay, so a set X is countable if we can find a subset of positive integers so that this subset of positive integer and the set X have the same cardinality. Okay, so this is the meaning of countable. So you all know every finite set is countable, okay? Empty set is countable, and there is this countable infinite set. If a set is not countable, then it is called uncountable. Can you give me one example of an uncountable set? So you all know these things. You have learned these things many times, okay? So simplest example is R. This is uncountable set. R is uncountable. Any interval, say 0, 1, this interval is uncountable. This is uncountable. Okay. In fact, irrational numbers R minus Q, this set of rational numbers. This is these are irrational numbers. Irrational numbers are uncountable. Okay. So as the name suggests, countability axiom. So we will see something related with countables. Okay. So let us come to the topological spaces. So let us recall first the neighborhood system. So you all know what a neighborhood system is. Do you all know what a neighborhood system is? Okay, so suppose we have X tau a topological space. Okay, X tau topological space. And for X in X, a subset N, say a subset N of X containing X is called neighborhood of X. If please complete this sentence, you all know this, we have seen many times. So when will we say N is a neighborhood of X? Hello? सर एक्स के लॉन्ग कोई इंटरवल है वो जिसमें इन, एक्स लॉन्ग करता हूँ आपका नाम क्या है? सर वो प्रॉपर सर निहारिका निहारिका, इंटरवल हम लोग एक इंटरवल हम ऑर्डर्ड स्पेस के लिए ही फिक्स रख रहे हैं. इंटरवल जैसे रियल नंबर में हम फिक्स रख रहे हैं, ठीक है? अगर वो रियल नंबर नहीं हुआ तब क्या कहेंगे उसको? इंटरवल को हम किससे रिप्लेस करते थे, याद करो? ओपन सेट से रिप्लेस करते थे ना, ओपन सेट या बेसिक ओपन सेट. सो आपका कहना था कि अगर कोई इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट and open set G, okay, such that X is in G and G contained in it, then N is called neighborhood. Okay, so suppose we denote NX the set of all neighborhood of X. Okay, this is called neighborhood system of X. Set of all neighborhood of X is called the neighborhood system of X. Okay. So this will contain all open sets
containing this small x. Okay. So now we all know we have seen these things earlier. We have also seen base. Okay. And let us see now local base. We have seen this earlier, but again, let us see it local base, okay, or local basis. Local base. How do we define local base? Means we will define base locally. So via this neighborhood system. See, this neighborhood system is very local. Okay, we always say neighborhood of a point X. Whenever we will say uh, a property related to a point, it is called local property. Like differentiability is a local property, because we say differential at a point, continuous at a point. Whenever we say these things, these are local properties. Okay. And when we see continuity is a local property, whereas this uniform continuity is global property. You see, in case of uniform continuity, you say function is continuous on domain, uniformly continuous on domain. You do not say function is uniformly continuous at a point. Okay. So uniform continuity is a global property, but continuity is a local property, because we say this is function is continuous at a point. So when we say something at a point, that something property is a local property. So here we are saying local base means it will depend on point, it will depend point wise, correct? Okay. So we start with a point, x be a point, okay, in the topological space. So this x, capital X, is topological space, and suppose this nx be the neighborhood system. You all know what a neighborhood system now is. So neighborhood system means set up all neighborhood of okay. A subfamily B of nx. So this will be a subset of nx. Okay, is said to be a local base, or sometimes we call local basis. Okay? X, if for each neighborhood, okay, for each neighborhood of X, there is an element from B. There is element, or so it is called a member. So a member B coming from this funny B, such that B contained in U. Okay. So see, this is same as the definition of basis. How is it how is it same as definition of basis or definition of base? In base, what you do, you take instead of nx you have tau. Okay, tau is the collection of all open set. Here nx is the collection of all neighborhoods. In tau you take a subset honey b of tau. Here you are also taking a subfamily. Okay, so in both cases these are subset. In this case this is subset of nx.
and in case of base, this B was a subset of tau. Okay, and in case of base, you for each open subset, there exists some B coming from this funny B such that B is contained in G. Here also for this any neighborhood of X, there exists a neighborhood coming from this funny B. See this resemblance? So you can remember these things via this similar. Okay. So this is the definition of local base. Now let us see the first axiom of countability, or it's called first axiom of countability, or first countable space. Okay, or sometimes called first countable. First. So a topological space X is set to satisfy first axiom of countability, or we simply say this topological space is first countable if each point X of the topological space X has a countable local base. A countable local base, then X is called first countable, or X is for X, or we say X satisfies, say X satisfies first axiom of countability. Okay, so this means in this topological space, every point has, so you take this neighborhood system. In this neighborhood system, you always get a countable. Okay, so such spaces are called first countable space. Let us see some examples. So number one, R is R with usual topology. Okay, R with usual topology. R with usual topology is first countable. How? So for this, you choose any point. Okay, let us see how R is first countable. See, this is R. You choose any point x0. Okay, here. Okay. In x0, what you have, there are infinitely many. There are means uncountably many neighborhoods. Okay, uncountably many neighborhoods there. So of x0 in R. Okay, so you have to find a base. You have to find a base for a countable base for this x0. So what you do, you simply take this collection given by these open intervals x0 minus 1 by n comma x0 plus 1 by n, where this n coming from positive integers. Okay, you know these, since these n's depend on positive integers, and you know positive integers are countable, therefore this collection is countable. Okay, and
this B is clearly, this B is countable and it is a local base, so this is a countable base. Point x0. Okay. Since this x0 is arbitrarily chosen, therefore, therefore, this is true for any point of R. Hence, R is first countable. Is there any doubt? कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें. So first countability and there is second countability. These two are very important in convergence of sequences. Why are we reading these things? Why are we learning these things? This is because these are crucial properties in convergence of sequences. Okay, you see, आपको अगर याद हो, आप रियल नंबर सिस्टम में आप कहते थे कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, आपने ये पढ़ा ना, इफ xn is a convergent sequence in R, then its limit is unique. Its limit is unique. ये आपने पढ़ा है? Yes, sir. तो ये इसको इस रिजल्ट को होल्ड करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए, उसमें एक जो मेन टूल था, जो मेन प्रॉपर्टी थी आपका आर के पास, वो था फर्स्ट काउंटेबिलिटी. तो आप याद करिए, ये कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट एल की ओर अगर एक्शन कन्वर्ज करता है एल की ओर, तो आप जानते थे एल के पास एक काउंटेबल बेस सब बेस होता है. तो आप बताते थे कि ये सारे के सारे एक्स जे जो है एक टाइम के बाद इसके अंदर आ जाएंगे. ओके, तो ये एक बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी थी जिसका नाम आप लोगों ने वहां नहीं पढ़ा, बस उसको यूज कर लिया. अभी आप इसका इसको देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का एक नाम दे रहे हैं. तो ये फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने यूज भी किया और जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं. आपने यूज किया, इसे धड़ल्ले से आपने यूज किया है अपने बीएससी के दौरान, लेकिन इसका नाम आपने तब नहीं पढ़ा था. अब इसको नाम आप देख रहे हैं, फर्स्ट काउंटेबिलिटी, इस पे हम इसे बोलते हैं. ओके, और एक दूसरी प्रॉपर्टी थी जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये लिमिट यूनिक होने के लिए, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कोई याद कर सकता है? अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताएं. एक और प्रॉपर्टी है फर्स्ट काउंटेबिलिटी के अतिरिक्त, जहां पर अगर स्पेस वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो कोई भी सीक्वेंस के पास एट मोस्ट वन लिमिट होती है. हमने ये थ्योरम पढ़ी है. वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कोई बता पाएगा? ओके, कोई बात नहीं, उसको हम कहते हैं हाउसडॉर्फ. हाउसडॉर्फनेस पढ़ा, आपको याद आ रहा है? हेलो, Yes, sir. क्या हाउसडॉर्फ क्या होता है? यस सर, पढ़ा है. क्या होता है हाउसडॉर्फ, बताइए. हाउसडॉर्फ स्पेसेस कौन से कहलाते हैं? वो स्पेसेस जहां पर कोई दो पॉइंट के लिए हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाए. अगर x और y दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं
स्पेस में x में, तो हमें u और v दो ओपन सेट मिले, there exists u and v open such that x in u, y in v, and u intersection v is empty. Okay, so R satisfies this Hausdorff property also. Okay, so R is a Hausdorff space. So the convergence of sequences में, so in this, for this theorem we need two properties. Number one is Hausdorff and another is first countable space. Okay, so since R was both of them, we didn't say that time that R is first countable and R is Hausdorff space. I mean, you didn't see this in your BSc, but now you can see these things here, okay, and you can appreciate these properties of R. So you see this R with usual topology is a metric space. This is a metric space. So let us see whether every metric space is first countable or not. Okay. So our second example is any metric space is first countable. Metric space first countable. But that is easy because you see आप ये same टेक्निक यूज कर सकते हैं. सेम टेक्निक. आपने आर में इंटरवल लिया, आपको मालूम है मीट्रिक स्पेस में इंटरवल का काउंटर पार्ट क्या होता है? यू नो द काउंटर पार्ट ऑफ इंटरवल्स इन एन आर्बिट्ररी मीट्रिक स्पेस. हेलो सर डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस कोई सेट थोड़ी है, इंटरवल एक सेट है. Sir, please repeat your question. What are the counterparts of interval in arbitrary metric spaces? Real line में आपने देखा, real line is a metric space. Here we said this interval will work. Okay, तो interval का counterpart metric space में क्या है? सर ओपन डिस्क के थ्रू आप वो ओपन क्या बोले? ओपन इंटरवल या ओपन ओपन बॉक्स. डिस्क एक मिनट, एक व्यक्ति बोलिए, एक बोलिए, आप दो बोल रहे हैं, एक बोलिए कोई. ओपन क्या बोले आगे? मेरे ख्याल से वो सर ई बॉल Open? या ओपन बॉल. ओपन बॉल. बॉल. गुड. बॉल ठीक है. So metric space first counter है because for each x naught in x, what you do, take this collection B of ball centered at x naught, okay, radius say 1 by n, okay, say radius 1 by n, and so the same thing will work. ये सेम काम करेगा ना. आपने ये काम कर रहे हैं तो ये metric space में ये काम. Okay, this is a countable local base. Is this okay? Yes, sir. So the set of all, so you can replace this 1 by n by any sequence Rn. Okay, any sequence Rn that converges to 0.
Okay, you can replace 1 by n by Rn, that converges to 0. Correct? आप इसको 1 by n स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी आप इधर भी 1 by n को 1 by n स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 by 2n से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस जो कि 0 को कन्वर्ट करे उससे रिप्लेस करा जा सकता है. ओके, सो दिस वाज okay. Now what about Torsen-Frey line? RL, तो आपको मालूम है ये क्या है? कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस है ये? हाँ, Lower limit या upper limit? लोअर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेस. R with lower limit. R with the lower limit टोपोलॉजी. So ये क्या ये भी फर्स्ट काउंटेबल होगा? हाँ, गेस करिए. मीन्स अभी आपके पास मालूम है, आपको मालूम है कि भाई हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं यूजुअल टोपोलॉजी को, आपको मालूम है उसके बेसिक सेट्स क्या होते हैं टोर्सन-फ्रे लाइन के, तो आप वहां से गेस कर सकते हैं. बताइए. ये होगा कैसे, बताइए. सर, क्योंकि अगर जैसे हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी का बेस होता है सर, ओपन क्लोज होता है और ए पे क्लोज और बी पे ओपन होता है, तो सर उसको हम A-1 बाई एन या और B-1 बाई एन और 2n के फॉर्म में कर लिख सकते तो हैं. यहाँ पर तो आप 2 पॉइंट लेना, हमें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान. जो मीट्रिक स्पेस है, हम यहाँ पर एक पॉइंट x0 के अराउंड कुछ बना रहे हैं ना, यहाँ पर r के केस में हम Yes, sir. x0 के अराउंड बना रहे थे, तो आप x0 के अराउंड आपको बनाना है. तो RL में कैसे बनाएंगे x0 के Yes, अराउंड? sir, sorry. आपका सर, A और आप B की जगह आपका पे आपका आइडिया ठीक था, A और B की जगह ए ही लिख देंगे सर. A क्या लिखूं? आपने सही बोला था, जो पहले बोला था उसमें +1 बाई एन और +1 by n. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये जो है ये काउंटेबल बेस है, ठीक है. दिस इज काउंटेबल बेस एट 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 द पॉइंट A. ओके, एट द पॉइंट A. अगर A को किसी दूसरे से रिप्लेस करोगे तो एट दैट पॉइंट. ओके, ये काउंटेबल लोकल बेस. आपका नाम क्या है? सर निहारिका. बिहारी का. एक बात बताओ, आप क्लास में मैंने देखा है आप अच्छे से डिस्कस भी करती हो, आंसर भी ठीक ठाक देती हो, लेकिन आपने एग्जाम में अच्छा क्यों नहीं लिखा? सर मेरे हिसाब से तो अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन गलत किया है और सर मैं उस टाइम ध्यान नहीं दे पाई थी, तो बाकी नहीं का नहीं, सर मुझे नहीं पता. मैंने टेस्ट की बात कर रहा हूँ. ये सर मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ, जो अभी हुआ था तो उसमें मुझे अपना एक ही आंसर थोड़ा गलत लगा था. आप 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 उस दिन क्लास में थी जब मैंने वो सर मेरा क्वेश्चन? नेट उस टाइम बहुत वो खराब था, तो मैं दो आंसर सुन ही नहीं पाई थी. अच्छा,
उस दिन आप शायद क्लास मिस करिए ना? नहीं सर, मैंने ज्वाइन किया था, पर वो नेट उस पे आप ले रहे थे मीट अच्छा, पे, तो आपको सर वो कौन सा लगता डिस्कनेक्ट है हो कि रहा था। आपको कौन सा क्वेश्चन आपका गलत लगता है, बाकी सब सही लगता है? सर वो जो क्लोज वाला बोला था आपने कि उसके रिस्पेक्टिव टोपोलॉजी में कौन सा वो क्लोज होगा, तो सर मैंने उस पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी को ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से मैंने अच्छा उसको ओपन अच्छा, उसको आप कहते हैं कि वो गलत है, बाकी आपका सब सही है। आप फिर से चेक यस करिए, सर। आप फिर से चेक करिएगा। आपने लिखा है पहले वाले क्वेश्चन में कि वो एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, मींस जो भी पहला क्वेश्चन था ना, आर क्या क्या था वो, एक्स एक्स इक्वल टू आर था, टाउ के पास केवल एम्प्टी सेट और फाइनाइट सबसेट थे, तो क्या एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा? तो आप फिर से चेक करिए, वो आपको लगता है अगर वो सही है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर से ये सब मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों से, ठीक है? आपने दूसरे का आंसर एक जगह लिखा है बी कैन नॉट बी ए बेस, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन आपने बहुत अच्छा नहीं दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आया आपका जस्टिफिकेशन क्या है। बाय द वे उसका आंसर ठीक है, आंसर जब अगर, हाँ मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक का मतलब आंसर हाँ या ना में अगर ना लिख दिया या हाँ लिख दिया और हाँ सही है, तो मैंने उसको आधा मार्क्स देता हूँ, 2 में से आधा मार्क्स, और जस्टिफिकेशन के 1.5 मार्क्स होते हैं। अगर आपका जस्टिफिकेशन कुछ भी उटपुटांग है तो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, आपका वो आंसर 0.5 मिलेगा उसका, ठीक है? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ठीक किया है, लेकिन आपने इसमें केवल क्लोजर वाला और वो इंटीरियर वाला वो ठीक किया है, वो आपका सही है, उसके अलावा नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा हैरान था कि आप क्लास में तो जवाब भी देती हैं, अच्छे जवाब भी देती हैं, लेकिन क्यों नहीं? और इस मामले में एक दूसरी लड़की है प्रतिभा रजावत, उनसे भी मैं बहुत हैरान हूँ, वो क्लास में कुछ नहीं बोलती हैं, जब मैं उनसे नाम लेके बोलता हूँ तब भी नहीं बोलती हैं, लेकिन उनका आंसर्स बड़ा अच्छा लिखती हैं। कल तो वो हो जाएगा। ओके, चलिए कोई नहीं, आप लोग मेहनत करिए, फिर से ठीक होगा। लेकिन हाँ, आप बहुत अच्छा अच्छा आंसर क्लास में बताती हैं, मुझे लगता है कि शायद आप अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाती लिखते वक्त ना, तो उसको आदत डालिए। थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे। ओके, सो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जो कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं, ओके? तो हियर इज एन एक्सरसाइज। तो हम पहले देखते हैं कि क्या ये होगा आंसर हो क्या क्या हम लेते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ओके? तो टेक एक्स एज अनकाउंटेबल सेट, एक्स अनकाउंटेबल सेट। अब अनकाउंटेबल क्या होता है? जो काउंटेबल नहीं है, एक्स uncountable set with cofinite, okay? And take x tau cofinite, so tau cf is cofinite topology, okay? Is this space first countable? Is this space first countable? So ये अनकाउंटेबल होने से कोई कोई गड़बड़, देखो आप ये देखें कि यहाँ पर x को मैंने अनकाउंटेबल भर लिख दिया है,
इससे स्पेस फर्स्ट काउंटेबल नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पर जो आर लिया था वो भी तो अनकाउंटेबल सेट होता है ना। आर विद यूजुअल टोपोलॉजी जब ले रहे थे तो आर अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल सेट के ऊपर कोई टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल हो सकती है। आपके पास एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल है, या मीट्रिक स्पेस में एग्जांपल है, ठीक है। फ्रोजन फ्रे लाइन पे अभी यहाँ पर है कि अनकाउंटेबल सेट है, अब ले रहे टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। Okay, so let us first recall what is a cofinite topology. Cofinite topology क्या है बताइए? हेलो, कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है? सर ऐसी टोपोलॉजी जो ए कोई सबसेट एक्स का हो और एक्स माइनस ए काउंटेबल हो, सर फाइनाइट। अच्छा, ये इसमें इस टोपोलॉजी में वो एलिमेंट होते हैं, वो सबसेट्स होते हैं एक्स के जिनका such that कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट या फिर एम्प्टी हो। is finite, okay? और G is okay? या तो G एम्प्टी हो या x माइनस जी फाइनाइट, ठीक है। ये तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात है। अब मान लेते हैं कि ये, तो देखते हैं, मानते हैं कि क्या ये फर्स्ट काउंटेबल, अगर ये फर्स्ट काउंटेबल होता, अगर स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता तो आपको एक काउंटेबल लोकल बेस मिलता, एक बी मिलता जिसमें सबसेट्स bn होते और ये काउंटेबल लोकल बेस होता है ना। सपोज this is a countable local base, okay, of neighborhoods at a point x, okay। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी आप ओपन नेबरहुड यू लें, फॉर एनी नेबरहुड u of x, there exists some n in z plus such that Pn contained in u। यही तो हमने लोकल बेस की डेफिनेशन दी थी अभी, ठीक है। आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए x का, उसके अंदर एक bn तो मिलेगा हमको भैया, और ये bn x का नेबरहुड है पहले से, ठीक है, ओके। So if it was first countable, we have this thing. So now हमको ये bn मिले, okay, but we have bn, these are open, these are neighborhoods of x and they form a countable local base. So these are open neighborhoods, okay, I am saying these are open neighborhoods. So local base of, let me call open also, open neighborhood। तो आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये तो क्लोज्ड हो जाएगा ना, x में क्लोज्ड होगा ना। इज दिस करेक्ट और नॉट? So take these closed sets, okay, these are closed sets, correct। अब आप क्या करिए, हमने ओपन नेबरहुड किसका लिया था? पॉइंट x का लिया था। आप पॉइंट x के साथ इन सब का यूनियन ले लीजिए, इन सब का, ये जितने भी आपके ये FN मिले हैं आपको, ठीक है, इसका यूनियन ले लीजिए।
वो आपको, और इसका नाम एक सेट दे दीजिए एफ। ठीक है, अभी आप जानते हैं ये बी एन जो है ये सब काउंट, ये बी एन जो है ओपन सेट थे, और एफ एन जो है वो काउंटेबल, सॉरी वो सब क्लोज सेट है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर बी एन सब ओपन है तो एक्स माइनस बी एन क्या होंगे, माइनस बी क्लोज्ड होंगे। क्लोज होंगे। क्लोज्ड होंगे। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होगा, वो एक्स माइनस बी एन कैसा सेट होगा, ओपन सर ओपन होगा अरे कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। और फाइनाइट होंगे, फाइनाइट फाइनाइट होगा। ओके, यस सर। सो एफ एन, ये जितने भी एफ एन है वो सब क्या है, फाइनाइट है। जितने भी एफ एन है वो फाइनाइट है। अब एक रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यहाँ पर हमें काउंटेबल नहीं फाइनाइट चाहिए, इट्स काउंटेबल है। तो इसका मतलब ये सेट फाइनाइट था, ये सारे सेट फाइनाइट है, इनका काउंटेबल यूनियन हम ले रहे हैं। तो ये जो सेट एफ मिला, दिस सेट इज नथिंग बट काउंटेबल, एफ इज काउंटेबल। इज दिस करेक्ट और नॉट? फिर से देखते हैं, हमारे पास, हमने माना कि ये जो बी था ये लोकल बेस है, तो बी एन जितने भी ओपन नेबरहुड होंगे हम इन, और ये सब काउंटेबल है, हम इनका कंप्लीमेंट लेते हैं, इसका नाम एफ एन देते हैं। कंप्लीमेंट बी एन का फाइनाइट है, इसलिए सभी एफ एन फाइनाइट होंगे। उन सब का यूनियन ले लेते हैं जो कि काउंटेबल यूनियन है, और उसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं एक्स, जो कि फाइनाइट सेट है। इन सब का यूनियन एक काउंटेबल सेट होगा। इज दिस करेक्ट? यहां तक बात ठीक है या नहीं है? यस ठीक है। सर। ओके, अब x आपके पास क्या था, अनकाउंटेबल, x was uncountable. Okay, f was countable, f is countable, x was uncountable. So this means x minus f is non-empty set, na? Is it okay or not? ये जो f Repeat था it. वो f is subset of x, it is clear because it is complement of bn. So f जो है x का subset है, x uncountable है, f काउंटेबल है, तो x माइनस f कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा ना? सो x माइनस f अनकाउंटेबल होगा। बहुत सुंदर। अनकाउंटेबल क्यों होगा? अगर काउंटेबल हुआ तो काउंट, ये काउंट, अगर मान लो ये काउंटेबल हुआ, ये भी f भी काउंटेबल है, काउंटेबल का यूनियन काउंटेबल होता है, x काउंटेबल हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, अनकाउंटेबल। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। x माइनस f इज अनकाउंटेबल। तो आप एक काम करिए, एक कोई पॉइंट ले लीजिए y माइनस f में। ओके, आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, कोई एक पॉइंट लिया आपने। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सेट u? u कैसा सेट है? अनकाउंटेबल होगा। नहीं, अनकाउंटेबल तो होगा, साथ में
कोफाइनाइट टोपोलॉजी में होगा, मींस ये टाउ सीएफ में होगा या नहीं होगा? मींस आई मीन ये ओपन होगा या नहीं होगा? ये काउंटेबल होगा सर, नहीं। फाइनाइट होगा ये, क्या होगा? तो फाइनाइट क्या फाइनाइट होगा बोलिए आप? यू। यू कैसे फाइनाइट हो सकता है? आप एक्स में से केवल एक ही पॉइंट हटा रहे हैं, एक्स अनकाउंटेबल है, यू तो फाइनाइट हो ही नहीं सकता भाई। मेरा 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 क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यू ओपन होगा? हम कौन सी टोपोलॉजी में हैं? सर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी में यू जो कि ऐसे डिफाइन किया गया है वो ओपन होगा? कोफाइनाइट यस टोपोलॉजी सर, में उसमें ओपन होगा क्यों 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 ओपन होगा? क्योंकि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट या फिर एम्प्टी होते हैं। तो इसका सर वो एलिमेंट्स होते हैं, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का एलिमेंट ओपन सेट होता है। तो ये यू तो नॉन एम्प्टी है पहली बात, तो एम्प्टी तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका सर ये फाइनाइट होगा, ये क्या होगा? फाइनाइट। आप क्या बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? निहारिका बोल रही हैं? सर साक्षी। साक्षी, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि जो सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओपन सेट होते हैं, तो सर मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रही हूँ। किसी टोपोलॉजिकल स्पेस, सो टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं, टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं वो ओपन सेट से होते हैं। आपकी बात सही है। अब मेरा क्वेश्चन है, यस सर। क्या ये यू टोपोलॉजी का एलिमेंट है? क्या यह यू टोपोलॉजी का एलिमेंट है? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन सी टोपोलॉजी है? सर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या प्रॉपर्टी होती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की? सर अगर हम किसी सेट एक्स का सबसेट लें यू, तो यू 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 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो फाइनाइट होगा या फिर एम्प्टी होगा। आप दो चीजों को बड़ा वो कर, या तो यू एम्प्टी होगा, पहले ऐसे बोले, या तो यू एम्प्टी होगा, क्या, ओके सर। या यू का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। ओके सर। ठीक है, आपने बोला यू का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा या एम्प्टी होगा, तो इसमें ये समझ में आ रहा है मुझे कि आप यू के कंप्लीमेंट को फाइनाइट या एम्प्टी कह रही हैं। ठीक है, यू का कंप्लीमेंट सर। अगर एम्प्टी होता है इसका मतलब यू कुछ नहीं है, एक्स है। ठीक है, क्योंकि ओके सर। एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट होता है, तो उसको कहने की अलग से कहने की जरूरत नहीं होती। तो आप ऐसा बोलिए, यू या तो एम्प्टी सेट है या यू का कंप्लीमेंट फाइनाइट। फाइनाइट। ठीक है, अब आप बताइए, ओके। आप क्या मानती है, यू क्या है? यू एम्प्टी तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक्स अनकाउंटेबल सेट है। और ये कैसा सेट है? काउंटेबल। हाँ, तो ये तो यू अनकाउंटेबल सेट है, ये तो हमें पता है, तो एम्प्टी तो नहीं होगा। तो अब यू क्या ओपन होगा? सर अगर हम
यू को उसके यू कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल है तो सर ये उसका कोफाइनेट टोपोलॉजी का एलिमेंट नहीं होगा। तो भैया सबसे पहली बात उसको उसको सॉल्व उसको लिखिए। कोफाइनेट टोपोलॉजी का एलिमेंट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी है ना, एक नहीं है तो दूसरा तो हो सकता है ना। मीन्स एम्प्टी नहीं है तो दूसरा दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी आपने बताई? आपने वो चेक किया? आपने ये सर चेक सर किया। सर कोई अनकाउंटेबल से एक फाइनाइट कैसे हो सकता है? यू अनकाउंटेबल है। आप टोपोलॉजी के एलिमेंट होने के लिए यू का फाइनाइट होना तो जरूरी नहीं है ना। इसका फाइनाइट होना जरूरी है। सर उसके कॉम्प्लीमेंट का। उसके कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट क्या है? सर x माइनस वाई। वो तो यू है भाई, यू का कंप्लीमेंट क्या है? वाई। सर वाई आएगा। सर वाई वाई क्या है? वाई फाइनाइट है, काउंटेबल है। फाइनाइट है। यस सर, यस ये सर। तो यू क्या होगा? टाउ का मेंबर होगा। हाँ क्या होगा? तो टोपोलॉजी का मेंबर होगा ये। हाँ तो यू ओपन होगा ना। जी। because x minus u is y which is finite. The complement of u is finite, therefore u is open. Okay? अब एक काम करते हैं, क्या u के अंदर कोई bn आएगा? क्या ऐसा होगा? Okay, let me write, does there exist an nz plus such that bn contained in u? तो हमारे bn देख लेते हैं। ओके, bn क्या थे? अच्छा पहले यहां से देखते हैं। गुड। ये जो y था वो किसका? वो y कहाँ नहीं है? u में नहीं। y इज नॉट इन u। ओके, y u में नहीं है, करेक्ट। यहां से क्या मिला? क्योंकि y u कॉम्प्लीमेंट में है तो y u में नहीं है ना। इज दिस करेक्ट और नॉट? लो, ये सर करेक्ट। हाँ। और y किसका एलिमेंट नहीं है? यहां से क्या पता चला आपको y किसका एलिमेंट नहीं है? इस वाले स्टेटमेंट से y किसका एलिमेंट नहीं है? ये ग्रीन से मैं डिनोट कर रहा हूं, f का। ओके, y नॉट इन f। ओके, y नॉट इन f। f क्या था? f क्या था? यूनियन ऑफ fn। ओके, और x। और fn क्या है? x माइनस bn। है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर y f में नहीं है तो y कहां पर होगा? किसी bn में होगा, फॉर सम। ओके, इज दिस करेक्ट और नॉट? y ये किसी भी fn में नहीं है, y यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये fn जो है वो कंप्लीमेंट है bn के, तो y किसी bn के अंदर होगा, तो साफ सी बात है। ओके, अब देखिए, आपको ये bn को y u के अंदर होने के लिए चाहिए, y जो है y u में नहीं है लेकिन y जो है bn में है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी bn
U के अंदर नहीं आएगा है, कोई भी UN जो है वो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, हाँ ठीक है, Y belongs to Bn है एंड Y not in U, ऐसा है। अब Y तो भैया Bn में आ रहा है लेकिन Y U के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब Bn जो है सबसेट ऑफ U तो नहीं हो पाएगा ना, या हो जाएगा? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो दिस मीन्स यहां से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा कि Bn सबसेट नहीं है U पर, और ऊपर से हम ले करके चलेंगे Bn सबसेट है U पर। वो है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बात, तो ये बात गलत होगी। तो दिस इम्प्लाइज, कहाँ रह गया, ये जो बात हमने लिखी थी ये गलत होगी, या बात गलत होगी। So this implies X tau cofinite is not first countable. है? अब जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे, याद है आपको कि अगर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, सॉरी यूनिक लिमिट होगी। तो आप देखिए क्या यहाँ पर वो बात सही है कि कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है उसका कोफाइनाइट टोपोलॉजी में यूनिक लिमिट है? चेक करिए, आप देखेंगे कि कुछ तो पंगा है भैया, ऐसा यहाँ नहीं होगा। ठीक, सो इट इज assignment for you, convergence of sequences in cofinite topology। और हमने ये पहले डिस्कस किया है, आप दोबारा उसको देखिए कि क्या ये चीज यहाँ पर सही है। तो आप पाएंगे कि जो हम बात कर रहे थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट होगी, वो बात यहाँ फेल कर जाएगी। क्यों फेल करेगी? क्योंकि ये क्या नहीं है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं। ओके, सो दिस मीन्स R with cofinite topology is not first countable. Okay, any doubt? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो सर ओके, एक और छोटा सा थ्योरम मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आज हमने केवल एग्जांपल देखे तो एक रिजल्ट होना जरूरी है, तो एक रिजल्ट के साथ आइए। सो द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज हेरिडेटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इफ X is a first countable space, and Y is a subspace, okay, of X, then Y is also first countable। मेरे ख्याल से आप लोग अब समझ गए होंगे क्यों हमने लिखा ये हेरिडेटरी है। तो आंसर बहुत इजी है, Y सब स्पेस है X का, X फर्स्ट काउंटेबल है, तो X के पास
काउंटेबल लोकल बेस मिलेगा अराउंड एवरी पॉइंट। ओके, सो अराउंड से पी कोई आर्बिट्री पॉइंट उठाया आपने एंड एक्स से बीपी इज दी बेस, लोकल बेस n and in z plus, okay, so it's countable base, okay, at point p in x। ध्यान रखना इन x जरूरी है, ठीक है, ये x में है। अब हमको काउंटेबल लोकल बेस एट पॉइंट p चाहिए। अब यहाँ पर p के लिए सो सपोज p बिलोंग्स टू y, तो p पॉइंट y का भी है तो p बिलोंग्स टू x, तो अपने आप आएगा ही आएगा। ओके, सो अब हमें लोकल बेस चाहिए x में। ये आप जानते हैं ये ओपन सेट से है, ओके, ओपन नेबरहुड है bn। अब आप बताइए सब स्पेस में ओपन नेबरहुड कैसे होते हैं? सब स्पेस के ओपन नेबरहुड्स या ओपन सेट्स किस फॉर्म के होते हैं? okay, if y is a subspace of x, what will be an open set in y? कैसे दिखेगा वो? सब स्पेस भूल गए? हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज कट रही, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा ध्यान आराम से बोलिए प्लीज। U intersection Y, बहुत U is an तो अब another बस 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 subset अब आप समझ गए होंगे यहाँ से। of अब यहाँ से हम X and U लोकल बेस is कैसे बनाएंगे? belong to town. हाँ, लोकल बेस कैसे बनाएंगे यहाँ से पता चल गया आपको? हमें एक लोकल बेस इन x की जगह इन y बनाना है, तो हमें मान लो bp स्टार बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? bn इंटरसेक्शन y z प्लस, okay, this is countable local base at p, okay, so therefore y is first count. Okay, so I'll stop here, we will resume tomorrow. कोई डाउट है किसी का? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ, प्रिया भारती ने तो जो मैसेज भेजा वो मैंने देखा ही नहीं। ओके, मैं फिर से कल एक बार और रिपीट करूंगा। और आप लोगों से फिर मुझे बहुत शिकायत है। आपने कल मेरी एक दो लड़कों से बात हो रही थी, वो लोग चीटिंग में फिर से इन्वॉल्व हैं। आपको मालूम है चीटिंग करना बहुत ही घातक हो सकता है आप लोगों के लिए। आपकी क्लास में से 4 स्टूडेंट का इस बार चीटिंग में पकड़े जाने की वजह से एक केस बना हुआ, आपको पता है ये बात? नो सर, हेलो, नो सर। नहीं पता है। हाँ, तो भैया आपको मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मेरे टेस्ट में किसी ने भी चीटिंग की, किसी ने भी, मैं कुछ नहीं एक केस बनाऊंगा। वो मैं आपको बता दूं, वो जो स्टूडेंट थे जो भी हैं वो 4 नाम मैं नहीं लूंगा, वो मेरे सब्जेक्ट में उनका हुआ है ये सब। लीनियर अलजेब्रा के में वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। पकड़े गए मीन्स वो कुछ और एक्स्ट्रा लिमिट तक पहुंच गए थे, बहुत एक्स्ट्रा लिमिट तक जो नहीं जाना चाहिए। अब मैं लिमिट को थोड़ा और डाउन करूंगा। अगर किसी के में कुछ भी गलत स्टेटमेंट पकड़ा जाता है, मीन्स कोई रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर 2 लोगों ने सेम लिखा है, क्योंकि रॉन्ग कोई भी सेम नहीं लिख सकता, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। 2 लोग एक जैसा गलत नहीं सोच सकते, मीन्स एक लाइन जो गलत लिख देते हो आप एक जैसा। अगर ऐसा मुझे मिला, मैं पक्का केस बनाऊं और
ये टेस्ट को मैं आपको जहां भी मैं पकड़ में आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ये टेस्ट मैं आपको माफ कर रहा हूँ, अगले वाले टेस्ट से बिल्कुल भी इजाजत आपको नहीं। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्रुप में आया था मैंने वहां से देखा, आपको ग्रुप में देखने का की परमिशन है ही नहीं। ग्रुप में कोई मैसेज आया आप वहां क्यों देखेंगे? भाई आपका टेस्ट है, आप टेस्ट दीजिए, आपको जो आता है उतना करिए। और आप एमएससी में पढ़ रहे हैं, बच्चे एमएससी में पढ़ रहे हैं, आप में से एक लिखता है कि एक जगह लिखता है कि एक्स टाउ इज नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस, फिर नीचे जाके उसको टोपोलॉजिकल स्पेस बना देते हैं। तो कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि अपने को जस्टिफाई तो कीजिए कि आप एमएससी तक आए हैं। एक बार बोल दिया एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, उसको वहीं खत्म करिए, बाद में फिर प्रूव कर रहे टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो वहां तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि लड़के को आता नहीं, कहीं से चीटिंग करा हुआ है। लड़का मीन्स यहाँ पर लड़की भी है, लड़का कहने का मतलब कि स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि केवल लड़के ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मेरे टेस्ट में आप लोग ईमानदारी से दीजिए, नहीं होता कोई बात, फेल करिए कोई दिक्कत नहीं, अगली बार दोबारा रिपीट करेंगे। मेरा भी काम बढ़ता है, ठीक है। आपका साल आपको तो दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तो मुझे भी दोबारा पेपर चेक करना पड़ेगा, आपके लिए पेपर बनाना पड़ेगा, मुझे चेक करना होगा, तो मेरा काम बढ़ेगा, उसमें कोई बात नहीं, दोबारा देंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं अच्छे से अब कुछ लोगों का होता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे और क्लास अटेंड करते नहीं। तो समझ गए दीपक गौतम, ठीक है, ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए। यस सर। सर केस कैसा बनाएंगे? केस कैसा मीन्स उसको कहते हैं अनफेयर मीन्स में पकड़ा जाना। अनफेयर मीन्स आप चीटिंग कर रहे हैं, दो लोग आपस में। अब अनफेयर मीन्स कैसे होते हैं? आप अगर ऑफलाइन क्लास ले रहे होते, ऑफलाइन टेस्ट देते, तो आप दो लोग बात कर रहे होते तो आपको उठा के बाहर कर देते ना, यस सर। और आपके खिलाफ एक नोट चला जाता कि ये लोग पकड़े गए हैं, इनके बारे में आप कमेटी डिसाइड करें, ऐसा केस, ठीक है। ओके सर। तो कम से कम आप उसमें यह होगा कि हाँ मैं आपको फिर से बता दूं, हाँ तो यस सर, वो जब कंटिन्यू। केस बनना बहुत ही गड़बड़ है, तो ये मत करिए, आपके करियर में दाग लगना अच्छा नहीं, करियर में दाग लगना बहुत बुरा है। अब आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, तो ये गलत है, और ये गलती आप करोगे तो मुझे वो करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो प्लीज आप और जगह जो भी करते हैं करिए, मेरे साथ ये मत करिए, मुझे ये पसंद नहीं है। और मैं जब देख लेता हूँ इन लोगों ने चीटिंग किया है, मुझे मालूम होता है आप लोग चाहे कितना ही झूठ बोले, आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, आप बोलेंगे मैंने ये यहाँ से उठाया, लेकिन वहां से उठाना भी तो अलाउ नहीं था। ओके, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, आपको पास होना है अपने दम पर पास होना है, बेशक अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है या कोई भी क्लास चल रही है, अपने दम पे पास होना है। और बात है नोट्स से, नोट्स में ठीक है मैं देना शुरू कर रहा हूँ, आपको अभी नोट्स नहीं दिया है, बाकी नोट्स आपके पास शायद आ गए होंगे। मैं कभी भी नोट्स को अच्छा ये नहीं मानता जब तक आप बुक से खुद पढ़े नहीं और खुद अपना नोट्स प्रिपेयर ना करें, तब तक वो बेहतर नहीं है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, आपने उसको पढ़ लिया, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है सीखने का। ओके, तो आपके पास बुक्स, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स Yes, बताई sir. हैं, आप बुक्स जी. पढ़िए, क्या आप बुक्स पढ़िए, बुक से सीखिए। आपके पास और भी मैं क्योंकि अभी बहुत ही हो सकता है मेरी टीचिंग में बहुत सारी कमियां हों, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे मिलेंगे, आप एनपीटीएल के कोर्सेज पढ़िए, ठीक है। एनपीटीएल में बहुत अच्छे अच्छे लोग लेक्चर देते हैं, तो आप एनपीटीएल में टोपोलॉजी का कोर्स सर्च करिए, वहाँ से पढ़िए,
जो चीज क्लास में नहीं हो रही है। अभी बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं दिखा, मुझे पाथ कनेक्टेडनेस नहीं दिखा, इसलिए मैंने वो पार्ट छोड़ दिया। तो पाथ कनेक्टेडनेस एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, आप खुद से पढ़िए उसको। हमने लोकली कनेक्टेड पढ़ा, हमने कनेक्टेड पढ़ा, पाथ कनेक्टेड मुझे नहीं मालूम वो कि मैं आपके सिलेबस में देख रहा था, कहीं नहीं दिखा मुझे। तो अगर टाइम बचेगा तो मैं एंड में पाथ कनेक्टेड को पक्का डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जैसे ऑर्डर टोपोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं था, मैंने आपको कुछ नोट्स उसके दिए, आपने शायद पढ़ा होगा। तो जो चीजें बहुत जरूरी है वो होना चाहिए, आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। तो और ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि टोपोलॉजी मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट हर पार्ट को कवर कर रही है। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, वहां पर टोपोलॉजी की जरूरत है। आप फंक्शनल एनालिसिस पढ़ेंगे, वहां टोपोलॉजी की जरूरत है। आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बिना टोपोलॉजी के जरूरत, आप टोपोलॉजी बिना टोपोलॉजी के आप ज्योमेट्री नहीं सीख सकते। आप डायनेमिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं एक दिन देख रहा था कुछ मैनीफोल्ड की बात आ रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने मैनीफोल्ड पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैनीफोल्ड की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस की, वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस का जनरलाइजेशन है, होम्योमॉर्फिज्म वहां पर आता है। तो बिना टोपोलॉजी के आप वो नहीं सीख सकते। ये सब चीजें प्लीज आपको अगर बाकी चीजों में मास्टरी करनी है तो टोपोलॉजी में मास्टरी करनी पड़ेगी। टोपोलॉजी, लीनियर अलजेब्रा, ये सब बहुत बेसिक है जो हर जगह काम आते हैं। ठीक है, रियल एनालिसिस हो गया, ये सब। तो आप लोग पढ़िए, नहीं आता है आप बात करिए मुझसे, क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। बस बात ये है कि आप लोगों के ये रिजल्ट से मैं बहुत ही नाखुश हूँ। अभी तक हाईएस्ट मार्क 5 गए हैं अर्पित के। और बहुत सारे फेल। तो ऐसे नहीं काम होगा ना, प्लीज। ठीक है, देन बाय। कोई किसी का कोई डाउट है अभी? ओके। सर एक क्वेश्चन था सर। क्या? सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर, 6 पेपर्स हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स के पोर्शंस भी हैं सर। तो कुछ टिप्स अगर आप अब दे सकें सर, कैसे टाइम मैनेज करें। एक अगर फर्ज करो कि आपका ऑफलाइन क्लासेज हो रही होती तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं आप? तब तो और दिक्कत होती ना, आपका आने जाने का टाइम चला जाता, यहाँ पर बहुत सारी चीजें करने में टाइम चला जाता। वो टाइम बचा है उसको यूज करिए। तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सर जैसे कि टोपोलॉजी की क्लास है और ऑपरेशन रिसर्च की क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन चलती हैं। तो वहाँ पर इन दोनों पेपर्स में सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बाकी जो 4 पेपर्स हैं उनकी क्लासेस क्या है, नोट्स भेज दिया जाता है और कुछ टीचर्स जो हैं वो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, फिर वो हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आंसर पाते हैं। तो सर नोट्स में जो लिखा जाता है वो भी क्लियर नहीं करा जाता है, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती और फिर उसमें क्वेश्चन पोर्शंस है वो सब, तो उसमें क्वेश्चंस करने में भी बहुत सारा टाइम निकल जाता है, एक ही क्वेश्चन करने में। फिर उनको समझना भी है खुद से भी है, और क्वेश्चंस करेंगे नहीं तो फिर अच्छी नॉलेज नहीं आएगी ये तो सर। तो टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा था। इसमें तो आप फिर क्वेश्चन पूछते भी कहाँ है उतना, मैं देखता हूँ जब बोलते हैं क्वेश्चन पूछिए तो लोग बहुत कम, 1-2 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। ग्रुप पे तो आता ही नहीं, बहुत कम लोग। हो सकता है पर्सनल मैसेज करते होंगे तो अलग बात है। उसके लिए देखो, ये टाइम मैनेजमेंट तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। सर कभी कैसे कभी करना क्वेश्चंस पूछते हैं सर तो सेटिस्फाइड आंसर मिल जाते हैं, तो फिर आगे
फिर वो हो समझ में आती हैं चीज़ें, फिर तो आगे मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन कभी कभी सर नहीं मिल पाता सेटिस्फाइड आंसर, तो फिर आगे फिर बात भी नहीं कर पाते कि सर नहीं समझ में आया कुछ। और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में बोल पाते हैं सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सर ये जो नोट्स भेज करके पढ़ाने वाली चीजें हैं सर, ये अच्छी नहीं लगती सर, इसमें समझ में भी नहीं आता है। और ऊपर से बस केवल प्रेशर ऐसा महसूस होता है कि बस प्रेशर बढ़ रहा है सर, जो पढ़ना है अपने से पढ़ना है। यहाँ पे सर आप क्लासेस लेते हैं तो अच्छे से समझा भी देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें भी होती है वो भी इवन आप मेंशन करते हैं, और फिर बहुत अच्छे से बेसिक्स और कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाता है। लेकिन सर वहाँ पे नोट्स है, मैं किसी टीचर पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, सब मेरे टीचर सर रिस्पेक्टेड है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि सर जो ये नोट्स भेज करके पढ़ाया जाता है इसमें डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं सर। आई थिंक ये सभी स्टूडेंट के साथ होता होगा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अभी समय थोड़ा सा दिक्कत है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मालूम नहीं मुझे कब ये सब होगा ओवर। लेकिन अभी ऐसे ही आप देखिए, ऐसे ही कोशिश करिए। इतना टफ तो सब्जेक्ट नहीं है वो भी। कैलकुलस ऑफ वेरियस क्या है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन वाला पार्ट तो ही रहता है अधिकतर। और कौन सा है आपका डायनेमिकल सिस्टम? मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी वो पढ़ा नहीं, मैं बस एक सर आध बार सभी देख के रहा था। सभी अप्लाइड पोर्शंस हैं, तो सभी इजी हैं सर, पढ़ने में भी इजी लगते हैं, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा उतना मोटिवेशन नहीं बन पाता है पढ़ने में, जितना टोपोलॉजी या फिर ऑपरेशंस रिसर्च में बनता है। इसके लिए शायद अभी जल्दी खुलेगा मुझे लगता है, अब मालूम नहीं कब, लेकिन ये सर खुल जाए तो अच्छा है सर। वैसे क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम में भी जा करके टीचर से पर्सनली भी कौन बात कर सकते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं। बाकी आप अभी तो बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। एनपीटीएल के कोर्सेज देखिए, एनपीटीएल में आपको बहुत सारे मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट तो वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। ये सर, लेकिन केवल जितना उसमें बताया गया होगा उतनी ही जानी है सर, कुछ अपने जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ कैसे पूछेंगे। वो आप टीचर से पूछ सकते हैं, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई आपको मना तो कोई नहीं करता ना कि क्वेश्चन ना पूछिए तो सर कोई। मैं क्या बोलूँ सर, मेरे साथ क्या हुआ है, फेस कर चुका हूँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए। इसमें मैं तो कुछ क्या बोलूं, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी तो ऐसा ही है, प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप लोग खुद से डिस्कस कीजिए, वो एक तरीका है। आप स्टूडेंट आपस में, मैं आप लोगों को इतनी बार बोला है, कोई नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। तो आप लोग खुद से डिस्कशन भी, आप हमारे टाइम पर तो ये मीडियम नहीं होते थे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब इतना चलता नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग वैसे आपस में जब मिलते थे डिस्कस करते थे। आप लोगों के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बस वही है, जीवटता चाहिए करने के लिए, बस और कुछ, है ना? तो चलिए, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आप ट्राई करिए धीरे धीरे, और क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए। ओके, जी सर। ओके, बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर।